ਹੈਲੋ एवरीवन मोस्ट वेलकम टू अवर चैनल राइट ऑन। ਤਾਂ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਪੀਐਸ ਟੈਟ ਦੇ ਲਈ ਸੀ ਟੈਟ ਦੇ ਲਈ ਤਾਂ ਜਰੂਰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਇਸ ਚੈਨਲ ਨੂੰ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈਲਪਫੁਲ ਹੋਏਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ। ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਆਪਾਂ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਮੈਥ ਦੇ ਟੌਪਿਕ ਨੂੰ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸਿੰਪਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਆ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਮਤਲਬ ਜੋ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੀਵੀਅਸ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਆਪਾਂ ਕੁਐਸਚਨ ਪੇਪਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ ਕੁਐਸਚਨਸ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ। ਕੁਝ ਟਾਈਪਸ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤੀਆਂ, ਕੁਝ ਫਾਰਮੂਲਾਜ਼ ਕੀਤੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਕੁਐਸਚਨ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਟਾਈਪ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕੁਐਸਚਨਸ ਦੀ ਸਿੰਪਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਆਫਟਰ ਦੈਟ ਜੋ ਆਪਣਾ ਥਰਡ ਟੌਪਿਕ ਹੋਏਗਾ ਸਕੁਅਰ ਰੂਟ ਐਂਡ ਕਿਊਬ ਰੂਟ, ਨੈਕਸਟ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸਟਾਰਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਿੰਪਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕੋਈ ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੈਂਥੀ ਟੌਪਿਕ ਹੈ, ਸਿੱਧਾ ਜੋ ਬੇਸਿਕਸ ਇੱਕ ਟੌਪਿਕ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਕੁਐਸਚਨ ਆਪਾਂ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸੋਲਵ ਕਰਨਾ, ਬੋਰਡ ਮਾਸ ਰੂਲ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ, ਕਿਤੇ ਫਾਰਮੂਲਾਜ਼ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨੇ ਨੇ, ਮਿਕਸ ਫਰੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਜੋ ਕੁਐਸਚਨਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਿਵੇਂ ਸੋਲਵ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਐਡੀਸ਼ਨ ਸਬਟ੍ਰੈਕਸ਼ਨ, ਸਿਰਫ ਇਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਆਪਾਂ ਕਵਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਬਾਕੀ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡਾ ਫਿਰ ਵੀ ਕੋਈ ਡਾਊਟ ਹੋਊਗਾ ਤਾਂ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਹਰ ਇੱਕ ਟਾਈਪ ਦਾ ਐਟਲੀਸਟ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ ਜੋ ਕਿ ਸਿੰਪਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੋ ਸਾਰੀਆਂ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਜੋ ਸਾਰੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਹੋਣਗੇ ਉਹਦੀ ਹਰ ਇੱਕ ਟਾਈਪ ਤੁਹਾਡੀ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤਾਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰੀਏ। ਔਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਵੀ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਉਮੀਦ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਘਰੇ ਬੈਠ ਕੇ ਵੀ ਜੋ ਕੁਐਸਚਨਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋਵੋਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਸਿੰਪਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਕੋਈ ਵੀ ਕੁਐਸਚਨਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੀਵੀਅਸ ਈਅਰ ਕੁਐਸਚਨ ਪੇਪਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਅਗਰ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਗੂਗਲ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜੋ ਕੁਐਸਚਨਸ ਨੇ ਉਹ ਕਿਤੋਂ ਵੀ ਕਲੈਕਟ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਜੋ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਹੈ ਟਾਈਮ ਟੂ ਟਾਈਮ ਕਰਦੇ ਰਹੋ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਥ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਨਾਲ ਹੀ ਆਪਾਂ ਬਹੁਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ, ਸਪੀਡ ਨਾਲ ਉਹ ਜੋ ਹੈ ਆਪਣਾ ਕਵਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਚਲੋ ਬਿਲਕੁਲ ਟੌਪਿਕ ਦਾ ਨਾਮ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਹੀ ਹੈ, ਸਿੰਪਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜੋ ਕੁਐਸਚਨਸ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਐਂਡਿੰਗ ਤੱਕ ਹਰ ਇੱਕ ਟਾਈਪ ਨੂੰ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤਾਂ ਚਲੋ ਸਟਾਰਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਬਿਨਾਂ ਟਾਈਮ ਵੇਸਟੇਜ ਦੇ। ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਆਏ ਹੋ ਇਸ ਚੈਨਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕ ਕੰਮ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਇਸ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਲੈਣਾ ਔਰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਜੋ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਪੀਐਸ ਟੈਟ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸੀ ਟੈਟ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਔਰ ਮੈਥ ਉਹ ਬੇਸਿਕ ਤੋਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਜੋ ਬਾਕੀ ਸਬਜੈਕਟਸ ਨੇ ਉਹ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਇੱਕ ਸੀਰੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋਗੇ। ਔਰ ਅਗਰ ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਇਸ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਔਰ ਲਾਈਕ ਸ਼ੇਅਰ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਰਿਵਿਊਜ਼ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿਓ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੋ ਨੋਟਸ ਨੇ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਚੈਨਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਂਡ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਡਾਊਟ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਲਈ ਇੱਕ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਗਰੁੱਪ ਵੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਲਿੰਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ। तो चलो बिना टाइम वेस्टेज दे स्टार्ट करते हैं। सब तो पहले तो अपना जो फर्स्ट क्वेश्चन होएगा उसनों मैं तुहाडे सामने हुण लिख रही हाँ। ठीक है जी, तो फर्स्ट क्वेश्चन अपना बिल्कुल आप कोशिश करांगे एटलीस्ट 25 क्वेश्चंस ने एटलीस्ट अज आप कवर करिए। ठीक है, तो बिल्कुल अपना जो फर्स्ट क्वेश्चन होएगा वो की होएगा। ठीक है जी, तो फर्स्ट क्वेश्चन तुहाडे सामने मैंने लिख दिता है, इसनों हुण आपां सॉल्व करते हैं। ठीक है, जिवें कि मैं तुहानूं दस्सिआ, हुण ये ना सोचिओ कि तो बिल्कुल ईजी है, जो जिद्दां भी आपां हर एक टाइप इहदे विच कवर करनी है, ईजी टू डिफिकल्ट जानना है, एक तरीके नाल पूरा सिंपलीफिकेशन आपां एक वीडियो दे विच कवर करन दी पूरी कोशिश करांगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। हुण इहदे विच तो बिल्कुल भी कोई डाउट नहीं है, इहदे विच तो मैनूं ये चीज़ क्लीयर है कि पहला मैं ब्रैकेट वाले नूं सॉल्व करांगी, उस तो बाद जो भी मेरा आंसर आएगा उसनूं मैं की कर दांगी 25 नाल डिवाइड कर दांगी। सो इहदे विच तो कोई भी डाउट नहीं है, सिंपल जी चीज़ है। पहला इसनूं आपां की करांगे, सबट्रैक्ट करांगे। मेरे क्वेश्चन करने तो पहले तुसीं खुद सॉल्व करोगे, तो सॉल्व करो इस क्वेश्चन नूं, इन्हां दोनों का सबट्रैक्ट करो और दसो इहदे विच कितना आंसर आएगा। ठीक है, तो जरूर देखते हैं। तो सब तो पहले तो मेरे को की आएगा 5 आएगा। हुण तुसीं सबट्रैक्ट इदां नहीं है पूरी रीति रिवाज नाल उत्थे करना है, जरूरी नहीं है। तुसीं अपना जो कैलकुलेशन है उसनूं फास्ट करन लई अपनी, मैं तो हुण पहले भी दस्सिआ सी कि मल्टीप्लाई, सबट्रैक्ट, एडिशन, ये सारा कुछ तुसीं प्रैक्टिस करते रहा करो। ठीक है, हुण इत्थे मैनूं पता इत्थे कितना रह जाएगा, 10 रह जाएगा। ठीक है, 10 दे विच 8 जाणगे 2। ठीक है जी, उस तो बाद अगर आप गल करिए इत्थे कितना रह जाएगा 5 दे विच 8 माइनस करांगे, कितना आएगा 5 दे विच 8 माइनस नहीं कर सकते, कितना बन जाएगा 15 दे विच 8 5 माइनस करांगे तो कितना आ जाएगा मेरे को 7। ठीक है जी, उस तो बाद अगर गल करिए इत्थे कितना आ जाएगा 4 दे विच भी मैं 6 नूं माइनस नहीं कर सकती, तो मैंने 14 दे विच 6 माइनस करना पएगा, मतलब कितना आ जाएगा मेरे को 8। और इत्थे मेरे को कितना बच जाएगा 2 - 2 करांगे तो खत्म हो जाएगा। और इसनूं हुण मैंने की करना है, डिवाइड करना है किस नाल 25 दे नाल, तो बिल्कुल डिवाइड कर दो। पहला इसनूं मैं दोनों नूं डिवाइड कर दिया, तो सब तो पहला किन्ने ते जाएगा 2 ते जाएगा। ठीक है जी, उस तो बाद मेरे को कितना हुंदा 50 नहीं सॉरी 3 ते जाएगा। ठीक है, 3 ते अगर आप गल करिए तो उस तो बाद मेरे को कितना आ जाएगा 75। इस दे विच जो मैं 75 नूं माइनस करांगी तो मेरे को 122 बच जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये वाला 2 भी मैं नाल लै रही हूँ, तुसीं किवें भी जिवें भी कंफर्टेबल उस तरीके नाल डिवाइड कर सकते हो। और 122 ठीक है, वो किन्ने ते जाएगा मेरे को 4 ते। ठीक है, और वो मेरे को कितना आएगा 100 आएगा। ठीक है जी, 22 मेरे को बच जाता है। ठीक है, और वो मेरे को कितना आ जाता है पिछले आंसर 9, मतलब मेरा जो आंसर होएगा वो होएगा 349। ठीक है जी, क्लियर है ये चीज़।
उम्मीद करती हाँ ये बिल्कुल बेसिक जो कॉन्सैप्ट से कैलकुलेशन से, इस तो इलावा ये कुछ भी नहीं सी। नैक्सट जो क्वेश्चन है वो आप डिस्कस करते हैं, जिद मैं थोड़े सामने स्टेटमेंट लिख रही हाँ। स्टेटमेंट है मेरे को 245 जिसमें मैंने मल्टीप्लाई करती एक्स नाल और वह अगे मल्टीप्लाई है 8 नाल और इसनों मैंने इक्वल रखा 95504 दे और मैंने वैल्यू कि फाइंड करनी है, मैंने वैल्यू फाइंड करनी है एक्स की, ठीक है जी, और मैंने वैल्यू फाइंड करनी है एक्स की। तो चलो इसनों सॉल्व करते हैं। हुण इसनों किवें सॉल्व करांगे, मैंने कुछ नहीं करना, बहुत सारे स्टूडेंट ये की करनगे, इन्हां दोनों पहले मल्टीप्लाई कर देंगे फिर उसनों ये की करनगे डिवाइड करनगे। ये तो बहुत ज़्यादा लंबा चला जाना है, पहले तुसीं 255 नूं 8 नाल मल्टीप्लाई करोगे फिर जिन्ना आएगा उसनों नाल डिवाइड करोगे, बहुत लेंथी हो जाना है। इन्ना लेंथी आपां करना नहीं, मैं तुहानूं पहला भी दस्सिया जो तुहानूं पता है कि तुसीं डिवाइड ही करनी है तो तुसीं उसनूं मल्टीप्लाई नहीं करोगे, एज इट इज़ रखोगे। हुण देखो एक्स की वैल्यू इधर तो एज इट इज़ आ जाएगी, ठीक है। 245 और 8 इधर मल्टीप्लाई दे विच है तो उधर जाके किस दा हो जाएगा, डिवाइड दा हो जाएगा। दोनों चीज़ें डिवाइड दियाँ हो जाएंगी क्योंकि दोनों इधर की ने मल्टीप्लाई दियाँ ने। क्लीयर है ये चीज़। तो हुण देखो इसनों अगे किद्दां करते हैं, कैंसल कर दो, ठीक है। कैंसल किवें करांगे कि जिहदे टेबल ते कैंसल होंदी है, जिवें 8 दे टेबल ते अगर इसनों कट करते हैं तो सब तो पहला मेरे को 8 किन्ने ते जाएगा 1 ते जाएगा, ठीक है। पिछे मेरे को कितना बच जाता है 1, इत्थे मेरे को कितना बन गया 15, 15 लिए भी यही किन्ने ते जाएगा 1 ते ही जाएगा, ठीक है। फिर मेरे को कितना बच जाता है 7, मतलब मेरे को इत्थे कितना बच गया 75। हुण 75 लिए आप इसनों किस ते लैके चलांगे 9 ते 72 आ जाएगा, ठीक है जी। 72 जो माइनस करांगे 30 बच जाएगा, 30 8 के टेबल ते किन्ने ते आएगा 3 ते, ठीक है। 24 64 8, मतलब मेरे को इत्थे कितना बच गया, इत्थे मेरे को आ गया 1 मिनट, इत्थे मेरे को आ गया 11938/245। क्लीयर है ये चीज़, ठीक है जी। हुण अगर इसनों अगे आप सॉल्व करिए, वेट मैं कैलकुलेशन चेक कर लैनी, उम्मीद है कोई मिस्टेक नहीं हुई होगी। 245 सॉरी मेरे को थोड़ा जहा स्टेटमेंट दे विच मेरे तो रह गया, इत्थे 1 मिनट, इत्थे मेरे को 45 नहीं है, इत्थे मेरे को 54 है, तुसी भी थोड़ा सही कर लो 1 मिनट। इत्थे मेरे को है 54, ठीक है। तो ऑब्वियस जी गल है इत्थे भी मेरे को कितना हो जाएगा 54 हो जाएगा, ठीक है जी। तो चलो देखते हैं उस तो बाद इत्थे भी मेरे को फिर कितना होएगा 54 होएगा। हाँ जी, हुण इसनों आपां ने की करना है डिवाइड करना है। हुण तुसीं इसनों डिवाइड कर दो, चाहे किस तरीके नाल भी सॉल्व करो। अगर तुसीं देख पा रहे हो मेरे को लेट कर लो। हुण देखो आपां मैं तुहानूं एक होर चीज़ इत्थे दस रही हाँ। हुण डिवाइड करांगे, मेरे को 4 ऑप्शनस ने, इन्हां चारों ऑप्शनस दे विच मेरे को कोई एक आंसर होएगा 47 49 51 ਜਾਂ 53। ये मैं थोनों 4 ऑप्शनस दे रही हाँ कि इन्हां चारां दे विच मेरे को कोई एक आंसर होएगा, ठीक है। हुण तुसीं अपना यूनिट डिजिट नूं यूज़ करो। वैसे तो यूनिट डिजिट जो अपना टॉपिक है वो अगे आएगा, बट मैं थोनों एक बार फिर भी दस रही हाँ किवें आपां इन्हां नूं ईजिली सॉल्व कर सकते हैं। हुण तुसीं इसनूं पूरा डिवाइड ना करो, ठीक है। मैं कल्ला लास्ट वाला डिजिट उठा लैनी हाँ, ठीक है। हर एक दा कल्ला लास्ट वाला डिजिट उठा लैनी हाँ, ठीक है। मैं सब तो पहला लिया 7, देखो इत्थे मेरे को 47 है ना, मैंने इसनूं इस ना सिंपल शब्दों में अगर आप कहिए कि इनू मैं किहदे नाल मल्टीप्लाई करा इन्हां चारां दे विचों कि मेरे को इन्ना आंसर आ जाए। डिवाइड का मतलब तो यही हुंदा ना कि इनू मैं किहदे नाल मल्टीप्लाई करा इन्हां चारां दे विचों कि मेरे को इन्ना आंसर आ जाए। बेसिक जी चीज़ है, ठीक है। हुण देखो इधर मैं 7 डिजिट ले लैनी है, इधर मैं 4 ले लैनी है। 7 4 ज़ा 28, लास्ट डिजिट मेरे को 28 आ रहा है तो लास्ट डिजिट मेरे को 28 आना भी चाहिए, ठीक है। तो यह मेरा आंसर हो सकता है। एक बार इसनूं आपां रख लैंदे, ठीक है। ये चीज़ क्लीयर हुई। हुण मैं ले लैनी हाँ 9 नूं अगर मैं 4 नाल मल्टीप्लाई करती हूँ तो मेरे को आंदा है 36, बट मैनू तो लास्ट डिजिट 8 चाहिए, बट इनू ये मल्टीप्लाई करके मेरे को कितना आ रहा है 36। सो ये तो मेरा आंसर नहीं होएगा, तो इत्थों एक जो आंसर है वो तो इलिमीनेट हो गया, ठीक है। इसी तरीके नाल 4 नूं जो मैं 1 नाल मल्टीप्लाई करूँगी तो मेरे को फर्स्ट डिजिट लास्ट डिजिट यूनिट डिजिट मेरे को की आएगा 4 आएगा, बट मैनू कितना चाहिए 8 चाहिए। सो ये भी जो मेरा आंसर है वो नहीं होएगा। 2 वैल्यूज़ इलिमीनेट हो गई। 3 नूं मैं 4 नाल करांगी तो मेरे को कितना आ जाएगा 12। सेकेंड डिजिट मेरे को 2 है, बट जो मैं मल्टीप्लाई करूँगी मैनू तो 8 चाहिए, बट 8 नहीं आ रहा। सो मैनू कुछ नहीं करने की जरूरत पई, मैंने बहुत छोटी छोटी मल्टीप्लाई की। ये मैं तुहानूं समझा रही हूँ, इसलिए शायद 1 तो 2 मिनट लग रहा है, बट अगर तुसीं अपने माइंड के सच का ठाई करोगे, ठीक है। हाँ जी, लास्ट डिजिट 8 है, हो सकता है 9 6 ज़ा 36, ठीक है। लास्ट डिजिट 6 है, नहीं हो सकता। इस तरीके नाल सॉल्व करोगे तो मिनट सकिंटां दे विच तुहाडा क्वेश्चन सॉल्व हो जाना है और तुहानूं तुहाडा आंसर मिल जाना है 47।
अगर तुहानू ऑप्शनस दे विच क्लीयरली नज़र आ रहा होवे इस तरीके नाल, ठीक है। उम्मीद है ये चीज़ क्लीयर होगी तुहानू। इहदे विच आपां की कीता, जो पहली गल तो मैं तुहानू इहदे विच ये सिखाई कि कदे भी अगर तुहानू पता है कि हाँ जी मैंने कट करना है ਜਾਂ मैंने सॉल्व ही करना है, तो उत्थे मल्टीप्लाई ना करो। इन्हां दोनों की मल्टीप्लाई नहीं करने की लोड़ सी, इन्हां नू सीधा ही उधर जाके की करता डिवाइड करता। डिवाइड दे विच मैनू पता सी एक नू तो मैनू कैंसल करना ही पैना, चलो 8 नू मैं ईजिली डिवाइड कर भी सकती हाँ, तो 8 नू मैंने डिवाइड करता। 8 नू मैंने डिवाइड किया तो मेरे को ये वैल्यू निकल के आ गई, ठीक है। हुण जो मेरे को ये वैल्यू निकल के आ गई तो मेरे को ऑप्शनस मैनू गिवन सीगियां। हुण देखो कहते इन्हां दोनों नू डिवाइड करके इन्हां चारां दे विचों किहड़ा एक आंसर आएगा, मतलब मैं इसनू इन्हां चारां दे विचों किहदे नाल मल्टीप्लाई करा कि मेरे को ये आंसर आ जाए। क्लीयर है ना ये चीज़, ठीक है। तो उस तरीके नाल मैंने इसनू बाय एलिमिनेशन मैथड कह लो या बाय ऑप्शनस कह लो सॉल्व किया, और इन्हां दोनों डिवाइड करन दी इन्नी लंबी डिवाइड करन दी इन्ना लंबा कट्टन की जरूरत ही नहीं बई। बाय ऑप्शनस यूनिट डिजिट नू इस तरीके नाल आपां यूज़ करके ऑप्शनस के अकॉर्डिंग अपना जो आंसर है बड़ी ईजिली फाइंड कर सकते हैं। क्लीयर है ये चीज़। कोई भी डाउट होगा तो तुसी ग्रुप दे विच जो कमेंट सैक्शन दे विच लिख सकते हो। हुण आपां वधदे अपने थर्ड क्वेश्चन वाल। थर्ड क्वेश्चन अपने कोल की है 24 मल्टीप्लाई 15 डिवाइड कर रही है मैं 12 नाल, ठीक है जी, इक्वल टू 165 माइनस एक्स, और इस दे विच मैंने की करनी है एक्स की वैल्यू नू फाइंड करना है। एक्स की वैल्यू नू आपां किवें फाइंड करांगे, देखो हुण इस दे विच भी सॉरी हाँ जी इस दे विच भी आपां की करना है। हुण देखो मैंने तुहानू बोर्डमास रूल सिखाया सी कि पहला बोर्डमास, हुण तुसीं इत्थे बोर्डमास क्यों यूज़ कर रहे हो, प्रीवियस क्वेश्चन दे विच क्यों नहीं कीती। प्रीवियस क्वेश्चन दे विच तां जी सानू क्लीयरली पता सी इत्थे मल्टीप्लाई है और इत्थे ब्रैकेट सीगा, सो सानू इन्ना ज़्यादा कन्फ्यूज़ होने की जरूरत नहीं पई। बट इत्थे तां सानू कन्फ्यूजन हो रही है, क्यों हो रही है, क्योंकि सानू एक साइड के उपर मल्टीप्लाई भी नज़र आ रही है और डिवाइड भी नज़र आ रही है। सो सानू नहीं पता असीं पहला मल्टीप्लाई करिए या डिवाइड करिए, तो इत्थे आपां बोर्डमास रूल का सहारा लवांगे। और बोर्डमास रूल आपां नू की कहंदा है, बोर्डमास रूल आपां नू कहंदा है कि कदे भी मल्टीप्लाई तो पहला हमेशा डिवाइड करो। सो इत्थे आपां की करांगे डिवाइड करांगे, ठीक है। सो सिंपल 25 मल्टीप्लाई 15 इसनू मैं बाय 12 लिख सकती हाँ, ठीक है जी, और इज इक्वल टू 165 माइनस एक्स मेरे को एज इट इज़ पे है। हुण इहदे विच तां कोई कन्फ्यूजन ही नहीं है। 12 1 12 12 2 का कितना हुंदा है 24 हुंदा है, ठीक है। 12 नू एक ते 2 दे टेबल ते कटांगे 24 आ जाएगा, और जो मैं 15 नू 2 नाल मल्टीप्लाई करांगी तो मेरे को कितना आ जाएगा 30 आ जाएगा, ठीक है। तो मतलब मेरे को कितना बन गया 165 इज इक्वल टू 30 बन गया। और इत्थों मैं एक्स की वैल्यू किमें कट सकती हाँ, इत्थों मेरे को एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, एक्स उधर जाके किदा हो गया प्लस का हो गया। देखो वैसे ये बेसिक जी चीज़ है, बट फिर भी मैं एक बार एक्सप्लेन कर देनी है। जो 30 नू मैं इक्वालिटी तो इधर लेके आ रही हाँ, तो मेरे को कितना बन जाएगा 165 माइनस 30, और जो मैं एक्स नू इधर तो उधर लेके जा रही हाँ तो वो मेरे को कितना बन जाएगा एक्स बन जाएगा। मतलब इतनी सिंपल जी चीज़ की होगी, जो आप इक्वालिटी तो चेंज करते हैं वेरीएबल या किसी भी नंबर नू, ठीक है, तो वह की हो जाता है सिंबल चेंज हो जाता है। हुण तुसीं इन्हां दा माइनस कर दो तो तुहाडे कोल एक्स की वैल्यू आ जाएगी, तो बिल्कुल कितनी आ जाएगी एक्स की वैल्यू 135, जो कि तुहाडा आंसर होएगा। क्लीयर है जी ये चीज़, ठीक है। ये तो सीगे इदां दे क्वेश्चन जो आम ही आपां नूं एग्जाम दे विच देखण नूं मिल जांदे ने। पेपर 1 दे विच भी हो सकदे ने, 2 दे विच भी हो सकदे ने, जिहदे विच आपां नूं बहुत सारे सिंबल्स दित्ते हुंदे ने, नेगेटिव पॉजिटिव मल्टीप्लाई, ठीक है, और नाल आपां नूं कहा जांदा कि एक्स की वैल्यू नूं फाइंड करो, ठीक है जी। तो अगे देखते हैं अगला अपना क्वेश्चन होएगा 16 1/13 माइनस 3 4/9 प्लस 18 21/26, ठीक है। हुण इस क्वेश्चन नूं पहला खुद सॉल्व करो, बाद विच आपां करदे हां, ठीक है। वीडियो नूं पॉज कर लेना, हाँ जी। तो इसनूं आपां किवें सॉल्व कर सकते हैं, देखो इहदे विच की है सॉल्वेशन आपां इहदी किवें करांगे। मैं तुहानूं पहलां ही कहा सी कि जदों मिक्स फ्रैक्शन दे विच आ जाए तो उदों आपां की करना हुंदा है। देखो 16 प्लस 11/13 माइनस 3 प्लस 4/9, तुसीं इसनूं ब्रैकेट दे विच लिख सकते हो, प्लस 18, ठीक है। अगर गल करिए तो ये मैं तुहानूं एक बार पूरा लिख के दिखा रही हूँ, बट आप उत्थे पेपर दे विच पूरा नहीं लिखना, इन्ना टाइम नहीं होगा अपने लिए, ठीक है। इस तरीके नाल आप इसनूं लिख सकते हैं मिक्स फ्रैक्शन नूं, बट आपां नहीं लिखना, आपां इन्ना सारा कुछ नहीं लिखना। सो इसनूं खत्म करो। आपां किवें सॉल्व करना है हुण वो मैं तुहानूं दस रही हूँ, ठीक है। हाँ जी, तो आप सॉल्व करना है इस तरीके ना 16 माइनस 3 कर देना है, कितना बन जाना है, पहले इन्हों सॉल्व कर लेना है। 16 माइनस 3 प्लस 18, देखो समझ आ गया मैं की कह रही हाँ। ये मैं की कहा है कि जस्ट जो मिक्स फ्रैक्शन के दिते हुए ने ना उन्होंने सॉल्व कर लो। 16 माइनस 3 करांगे कितना आ जाएगा 13, और 13 प्लस 18 करांगे मेरे को कितना आ जाएगा 131 आ जाएगा, ठीक है। 31 आ गया। हुण मेरे को पिछे की रह गया, पिछे मेरे को जो रह गए 11/13 रह गया, माइनस 4/9 रह गया,
और प्लस 21/26 रह गया। यही चीज़ रह गई मेरे को। क्लीयर है ये चीज़? हाँ जी। हुण इसनूं आपां सॉल्व करना है। इसनूं आपां सॉल्व करना है किवें? 31 तो मेरे को एज इट इज़ आ जाएगा। क्लीयर है ये चीज़? ठीक है। हुण अगे अगर आपां गल करिए इन्हां नूं किवें सॉल्व करांगे, जदों मैं इन्हां दा एलसीएम लवांगी तो मेरे को कितना आएगा। ठीक है, एवें करते हैं। इसनूं 2 ना चलो छोड़ो, आपां इन्हां दा एलसीएम लै लैने। 13, 9 और 6 का जो एलसीएम लवांगे तो मेरे को आ जाएगा 234। ठीक है, तुसीं एलसीएम लैके देख लेना, बड़ी ईजीली तुहाडा निकल जाना है। जो मैं 13 नूं 234 नाल डिवाइड करांगी तो मेरे को कितना आ जाएगा 18। ठीक है जी, मेरे को कितना आ जाएगा 18। तुसीं चैक भी कर सकते हो। ठीक है, जो मैं इन्हां दी मल्टीप्लाई कर दी। ठीक है, तो 2, 3, 8, 11, 12, 13 और 1, 1, 2। ठीक है, तो बिल्कुल मल्टीप्लाई करके तुसीं इसनूं चैक कर सकते हो। तो मेरे को जो इस नंबर देखो जो एलसीएम लैने आ उहदा आपां की करदे आ, देखो एलसीएम लैके मेरे को लेना आ गया। ठीक है, तो हुण मैं की करांगी, जो मेरे को एलसीएम लैके आया उसनूं मैं डिनोमीनेटर नाल करांगी डिवाइड, और डिवाइड करके मेरे को जिन्ना आंसर आ गया, हुण जिवें डिवाइड करके मेरे को 18 आंसर आ गया, तो 18 नूं मैं 11 नाल की करांगी मल्टीप्लाई। और 11 नाल मल्टीप्लाई पूरे रीति रिवाज नाल नहीं करनी, मैं तुहानूं पूरा सिखाया सी कि 11 नाल मल्टीप्लाई किद्दां हुंदी है। लास्ट डिजिट लिख लो। ठीक है, इन्हां उस तो बाद की करो, मल्टीप्लाई कर दो, इन्हां दोनों का एडिशन कर दो, सॉरी मल्टीप्लाई नहीं एडिशन कर दो। 8 + 1 करांगे 9 आ जाएगा, और उस तो बाद फर्स्ट डिजिट जो है वो लिख दो। सो मेरे को की होएगा, तो अपन जो ट्रिक्स आपां कीतियां सी वो इस तरीके नाल यूज़ होणगियां। समझ रहे हो ना, आपां उन्होंने किवें यूज़ करना है। इदां नहीं है कि तुहानूं स्पैशली 11 नाल मल्टीप्लाई लई क्वेश्चन आएगा, बट आपां ने उन्होंने कैलकुलेशन दे विच यूज़ करके अपनी कैलकुलेशन नूं फास्ट करना है। ठीक है जी, तो हुण देखो इस चीज़ नूं, वेट अपना कितना आंसर आया सी, मेरे को आया सी, मैंने 18 नूं 11 नाल मल्टीप्लाई करनी सी, राइट। तो मेरे को आया सी 198। ठीक है, हुण देखो इस चीज़ नूं अगे उस तो बाद देखो मेरे को फर्स्ट हो गया। हुण आपां सैकेंड देख लैंदे आ। सैकेंड मेरे को की चीज़ है 9। 9 नूं जो मैं इस नंबर नाल डिवाइड करांगी तो मेरे को कितना आ जाएगा 26 आ जाएगा। ठीक है, 26 आ जाएगा। एक बारी अगर करके देखना चाहते हो तो करके भी देख सकते हो। 9 नूं जो मैं 26 नाल डिवाइड सॉरी एडिशन नहीं माइनस आएगा, हाँ जी माइनस। ठीक है, तो तुसी इसनूं करोगे तो 26 आएगा। 26 नूं जो मैं 4 नाल मल्टीप्लाई करांगी तो कितना आ जाएगा 4, 4 2 8 और 2 कितना आ जाएगा 10, 104। ठीक है, उस तो बाद अगर गल करिए 26 नूं जो मैं 234 नाल डिवाइड करांगी, हुण उस तो बाद मेरे को 26 है ना नीचे, देखो थर्ड नंबर आप लैके चलना है। थर्ड नंबर मेरे को कितना है 26 है। 26 नूं भी तो इस नाल डिवाइड करनी है तो मेरे को कितना आ जाना है 9, और 9 नूं जो मैं 21 नाल मल्टीप्लाई कर रही हूँ तो वो मेरे को कितना आ जाना है 980। ठीक है, हुण इहदे विच की हुण तुसीं सोचोगे कि असीं इन्नी सारी डिवाइड करनी है। तुसीं एक चीज़ ध्यान च रखियो, जो तुसीं एलसीएम लाओगे इन्हां तिन्हां दा एलसीएम लैके इन्ना आ गया। ठीक है, तुसीं एक चीज़ देख लियो 13 नूं छड्ड के होर किहड़ियां 2 चीज़ां ने जो इहदे विच आ रही ने। ठीक है, मेरे को कितना आ रही सी 18 आ रही सी, 18 नूं मैंने इहदे नाल मल्टीप्लाई करता। ठीक है, हुण देखो इसनूं आपां सॉल्व कर लैंदे आ। तो मेरे को कितना आ गया 31 प्लस, ठीक है नीचे मेरे को कितना आ गया 234। आफ्टर दैट इन्हां दोनों का की करांगे माइनस करांगे 4, 9। ठीक है, और इसनूं किहदे विच ऐड कर देंगे, इस दे विच ऐड कर देंगे तो मेरे को कितना बन जाएगा 283। 283। ठीक है जी, हुण अगे इसनूं सॉल्व करते हैं। हुण अगे इसनूं सॉल्व करते हैं तो मेरे को कितना आ जाएगा 30। हुण तुसीं कहोगे जी इहदे विच यह आंसर होगा 31 283/234। बिल्कुल नहीं, ये आंसर नहीं होगा। देखो अगर अपने को डिनोमीनेटर जो है डिनोमीनेटर तो की हो जाए ग्रेटर हो जाए तो उत्थे अपने को की हुंदा है यह नंबर 1 नाल इनक्रीज़ हो जाता है। दोबारा दस रही हूँ, हुण देखो अगर मेरे को कोई इदा दी नंबर आता जिहदे विच यह छोटा हुंदा और यह वड्डा हुंदा तो कोई प्रॉब्लम नहीं सी, बट मैनू इत्थे की नज़र आ रहा है डिनोमीनेटर जो है वो डिनोमीनेटर तो ग्रेटर है, तो इहदे नाल की होएगा मेरा जो ये नंबर है ये 1 नाल की हो जाएगा इनक्रीज़ हो जाएगा। मतलब मेरे को इत्थे की हो जाएगा 32 हो जाएगा, और प्लस मैं इसनूं की लिख सकती हाँ 1 दे विचों माइनस करके, मतलब इन्हां दोनों का माइनस कर दो तो मेरे को इन्हां दोनों का माइनस करके कितना आ जाएगा 9। और उस तो बाद अगर आप गल करिए 7 दे विचों 3 माइनस करांगे 4, 234। सो मेरा इत्थे राइट ऑप्शन की होएगा 32, 49, 234। दोबारा दस रही हूँ अगर कोई भी थोड़ा लग रहा है इस तरीके नाल, देखो इत्थे तक आप पहुँच गए सी। ठीक है, मैं तुहानूं ये चीज़ कही है कि जो न्यूमीनेटर है मतलब अंश है वह हर तो डिनोमीनेटर तो ग्रेटर नहीं होना चाहिए। जो वह डिनोमीनेटर तो ग्रेटर हो जाता है तो जो अपना एडिशन के जो नंबर पे है वो एक नाल वध जाएगा, एक नाल इनक्रीज़ हो जाएगा। मतलब अपना उत्थे एक वध के कितना आ गया 32 आ गया। ठीक है, उस तो बाद देखो यदा मतलब की होंदा जो अपने एक इधर लै लिया तो वो मतलब अपने को की हो गया इस नंबर में आप 1 नाल माइनस कर दें।
जो अपने कोल जो आपने एक लै लिया, ठीक है, तो उसनों आप एक नाल माइनस कर दें। जो आप 1 नाल माइनस करते हैं तो वह की चीज़ बन जाती है। मैं तो 1 नाल माइनस करना ट्रिकी किवें सिखाया सी कि जो डिनोमीनेटर है वो तो इदा ही आ जाएगा और इन्हों दोनों का माइनस कर दो। इत्थे माइनस है ना, तो माइनस कर दो, अगर इत्थे प्लस हो तो प्लस कर दो, ओनली 1 नाल, ठीक है। तो ये चीज़ होंगी है, इन्हों दोनों का माइनस कर देंगे और इन्हों दोनों का माइनस करके अपने को की आ जाएगा, ये आंसर आ जाएगा, ठीक है। हुण देखो इस क्वेश्चन आप बाय ऑप्शनस किवें कर सकते सी। बाय ऑप्शनस भी यह क्वेश्चन बड़ी ईजीली हो सकता सी, ठीक है। हुण तुहाडे कोल ऑप्शनस की सीगियां, ऑप्शनस तुहाडे कोल हैगियां सी 11 23 234 23 11 234 32 49 234, ठीक है। उस तो बाद फोर्थ ऑप्शन सी 49 31 234। इसनों आप बाय ऑप्शनस किवें कर सकते सी। देखो पहली गल तो ऑप्शनस नूं देख के तुहानूं एलसीएम लैन की जरूरत नहीं पऊगी। एलसीएम लैन की जरूरत क्यों नहीं पऊगी, क्योंकि हर एक ऑप्शन के नीचे जो एलसीएम है 234 है, तो उत्थे तुसीं इदां नहीं है कि पूरा सॉल्व करोगे। जो तुहानूं दिख रहा है कि चारों ऑप्शन के विच 234 ही एलसीएम आ रहा है, तो तुसीं बिना किसी डाउट के वो एलसीएम है जो लैके कर सकते हो, अगर तुहानूं उत्थे कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं पानी। टाइम सेविंग हो गया। हुण उस तो बाद देखो तुहाडे कोल ये आंसर आ रहा सी ना 31, ठीक है। 31 नियर अबाउट किस दे है, सब तो ज़्यादा क्लोज किस दे है, एग्जैक्ट 31 थानू ऑप्शन के विच नहीं दिख रहा, ठीक है, आई एग्री। बट अगर गल करिए तो 31 नियर किस दे है, 11 दे, 23 दे, 49 दे, 32 दे। तो इत्थों तुसीं अपना बिना कैलकुलेशन के डायरैक्ट आंसर लगा सकते हो कि मेरा 31 आ रहा है और यह ग्रेटर भी आ रहा है, तो मतलब नियर अबाउट मेरा 32 बनेगा। सो दिस इज़ माई आंसर। क्लीयर है? हाँ जी, अगर थोड़ा कोई अद्धा भी आ जाता, कोई 31 च ऑप्शनस भी आ जाते, तो तुसीं इस चीज़ को ध्यान रखियो, ये ग्रेटर होएगा तो ही आप एक नाल इनक्रीज़ करांगे अगर डिनोमीनेटर ग्रेटर है, अदरवाइज नहीं करांगे, ठीक है जी। चलिए अगे, चलो अगला जो क्वेश्चन है उसको डिस्कस करते हैं। 5th क्वेश्चन है 12 1/3 + 10 5/6 -7 2/3 -1 4/7। हुण इसका की आंसर होएगा, हुण इसका की आंसर होएगा, ठीक है। करो इसनूं सॉल्व फिर, ठीक है। वही चीज़ है, पहले आप किन्ना नूं सॉल्व कर लांगे, इन्हां नूं सॉल्व कर लांगे, आपां नूं किसी चीज़ नाल कोई ओह नहीं। 12 दे विच 10 नूं ऐड करांगे, किन्ना आ जाएगा 32। 32 दे विच 7 नूं 8 नूं माइनस कर दो, ठीक है, मतलब 30 दे विचों 6 नूं माइनस कर दो, मतलब किन्ना आ गया 24। सो इत्थे मेरे कोल 24 आ गया। प्लस उस तो बाद अगर आप गल करिए, मे बी आई एम रॉन्ग या एक मिनट, 12 ने ये करोगे तो कितना आ जाएगा 22 आएगा। सॉरी मैं 32 बोल रही हूँ, 22 आएगा। तो ऑब्वियस ही गल है, तो मेरे को कितना आ जाएगा 22 दे विचों जो मैं 8 नूं माइनस कर रही हूँ, तो मेरे को कितना आ जाएगा 14 आ जाएगा, ठीक है। तो इतने मेरे को कितना आ जाएगा 14 आ जाएगा। और अंदर मेरे को ऑप्शनस की होंगियां 1/3 5/6 -2/3 और -4/7। हुण मैं तुहानूं इत्थे हैल्प लई नाल ऑप्शनस दस रही हूँ कि इसदियां की ऑप्शनस ने, ठीक है। ऑप्शनस तुहाडे कोल हैगियां, ठीक है, 11 13/4, ठीक है जी। सैकेंड ऑप्शन तुहाडे कोल हैगी 13 11/4। उस तो बाद अगर गल करिए 13 13/4। उस तो बाद ऑप्शन हैगी है 14 11/13। हुण तुसीं कहोगे कि साडा तां आंसर सानूं क्लीयरली नज़र आ रहा है कि 14 11/13 है। की पता है 13 वाला होवे, 13 वाला भी तो हो सकता है, जिवें उत्थे 31 सीगा, पॉसीबल है कि नहीं है ना। तो चलो देखते हैं, एक बार ऑप्शन तुसीं उतार लो, मैं इसनूं इरेज कर रही हूँ, ठीक है। हुण देखो, हाँ जी, हुण इसनूं आपां सॉल्व कर लेने आ। देखो 14 है, ठीक है, प्लस हुण इसनूं आपां सॉल्व करना है 3 6 3 7। देखो इन्हां दोनों नूं तो पहले ही सॉल्व कर लो, 3 वालियां नूं, ठीक है, इन्हां नूं तो पहले ही सॉल्व कर लो। पहले ही इन्हां नूं सॉल्व करके अपने कोल कितना आ जाना है, देखो 1/3 -2/3 मेरे को आ जाना है -1/3। सो इत्थे ही सारा खत्म हो गया, इत्थे ही सारा खत्म हो गया ये वाला। तो ये मेरे को बन जाना है -1/3, ठीक है। सो मेरे को यह जो है इस तरीके रह जाएगा। हम छोटा हो गया, ठीक है। हुण इन्होंने आप सॉल्व कर लेने 5/6 -1/3। तो मेरे को इत्थे एलसीएम कितना होएगा 42 होएगा, ठीक है जी। एलसीएम कितना होएगा 42, हाँ जी 42, ठीक है। हुण जो इसनूं आपां डिवाइड करांगे, देखो 6 नूं 42 नाल डिवाइड कीती, कितना आ गया 7 आ गया। 7 नूं 5 नाल डिवाइड करांगे, कितना आ गया 35 माइनस। उस तो बाद 3 नूं 42 नाल डिवाइड करांगे, कितना आ जाएगा 3 नूं 42 नाल डिवाइड करांगे, कितना आ जाएगा 14 आ जाएगा, ठीक है। और 14 नूं 1 नाल मल्टीप्लाई करांगे, कितना आ जाएगा 14। 7 नूं 42 नाल डिवाइड करोगे, कितना आ जाएगा 6। और 6 नूं 4 नाल मल्टीप्लाई करोगे, कितना आ जाएगा 6 4 जा 24, ठीक है। तो इत्थे मेरे को कितना आ जाएगा -24। हुण अगे इसनूं चलते हैं, अगे लैके चलते हैं थोड़ा। तो मेरे को कितना आ गया 14 प्लस नीचे आ गया मेरे को 42
34 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 24 ਮਾਈਨਸ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ 10। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ 5 ਔਰ ਇੱਥੇ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ 2 ਦੇ ਟੇਬਲ 'ਤੇ 21 ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆ ਗਿਆ 14 + 5/21। क्लियर। 1 मिनट मे बी मेरे को मिस्टेक है, एलसीएम सही लिया आप। एलसीएम देखो थोड़ा 7 6 जा ऑब्वियसली एलसीएम तो मेरा सही है, ठीक है। 31 24 10 5/41 5/21 12 1/3 10 5/6 - 7 2/3 - 1 4/7। हाँ जी सॉरी, इतने मेरे को आना सी 14 आना सी। हाँ जी, जो क्योंकि जो 3 ਨੂੰ ਆਪਾਂ 42 ਨਾਲ डिवाइड करांगे तो मेरे को कितना आएगा 14 आएगा और 14 ਨੂੰ मैं 1 ਨਾਲ की कर ਦਾਂਗੀ मल्टीप्लाई कर ਦਾਂਗੀ तो इतों मेरे को कितना आएगा 14 आएगा, ठीक है। तो इसमें चलो सही कर लेने आप। जो इन्होंने दोनों ਨੂੰ ਆਪਾਂ की करांगे 1 मिनट। हाँ जी, तो इन्होंने दोनों ਦੇ एक बारी अपने को कितना आ जाएगा 35 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਾਂ माइनस करना है 38, ठीक है। 38 ਆਪਾਂ माइनस करांगे, ठीक है। उस तो बाद अगर गल करिए 8 3, हाँ जी, तो इतने मेरे को कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। सो मेरे को 1 मिनट इतने मेरे को कितना आ जाएगा, सिंबल का भी फर्क पेगा मेरे को, पूरा मेरे को क्वेश्चन जो है इतने चेंज हो जाता है। मेरे को कितना आ जाता है 3/42 और मैं इसमें कैंसल कर देनी है तो मेरे को बन जाता है 14 - 1/20 सॉरी 21 नहीं 40, ठीक है। हुण देखो इसनूं आपां सॉल्व करते हैं तो बिल्कुल मैं तुहानूं दस्सिया सी, क्योंकि यह चीज़ किहदे विच है माइनस दे विच है, तो इसका मतलब ये नहीं कि आपां एडिशन दे विच अगर हुंदी तो मैं इसनूं लिख दिंदी 14 1/14, ठीक है। बट ये तो किहदे विच है माइनस दे विच है, तो इसनूं सॉल्व करना पएगा। तो इसनूं सॉल्व करते हैं आपां, ठीक है। नीचे कुछ नहीं है, दैट्स मीन की होएगा 14 होएगा। तो मेरे को कितना आ जाएगा डिनोमीनेटर दे विच कितना आ जाएगा 14 आ जाएगा, ठीक है। ਜਾਂ फिर इसमें एक होर तरीका है सॉल्व करने का, किस तरीके नाल आप इसनूं सॉल्व कर सकते हैं। इसनूं मैं लिख सकती हाँ 13, देखो जो 14 है उसनूं मैं किद्दां लिख सकती हाँ 13 + 1 - 1/14 लिख सकती हाँ, ठीक है। जो भी तुहाडे कोल माइनस का क्वेश्चन आ जाए तो उसनूं पूरा ना सॉल्व करियो, क्योंकि कई बार तुहाडे कोल जो आंसरस होंदे हैं, हुण जिवें इस क्वेश्चन के आंसर अपने कोल मिक्स फ्रैक्शन दे विच ही ने, तो आपां नूं भी आंसर जो है मिक्स फ्रैक्शन दे विच लैके आवांगे तो फायदा नहीं, आपां नूं ज़्यादा सॉल्व करना पएगा, ठीक है। तो उहदे विच आपां की करिया करांगे, जो माइनस आ जाए करेगा, जो नंबर आपां नूं गिवन होया करेगा उसनूं इस तरीके नाल 1 दे नाल ब्रेक कर लिया करियो, ऑलवेज टाइम 1 दे नाल, ठीक है। हुण जिवें 14 है उसनूं मैं की लिख सकती हाँ 13 + 1 लिख सकती हाँ, तो इसनूं मैं सॉल्व कर लैनी हाँ, ठीक है। हुण इसनूं मैं सॉल्व कर लैनी हाँ, जो इसनूं मैं सॉल्व करांगी तो मेरे को कितना आ जाएगा, मेरे को आ जाएगा = 13 प्लस, हुण देखो 1 नाल सॉल्व करना कोई डिफिकल्ट नहीं है। क्यों डिफिकल्ट नहीं है, डिनोमीनेटर मेरे को इदां ही आ जाना है, क्योंकि इत्थे माइनस है तो ये इनू माइनस कर दांगी तो 13 बन जाएगा। सो मेरा राइट ऑप्शन की होएगा 13/14। दिस इज़ द रीज़न बहुत सारे स्टूडेंट ने की करना है कि हाँ जी स्टार्टिंग साडा इत्थे एडिशन करके की आ रहा सी 14 आ रहा सी, तां करके जो 14 वाला ऑप्शन है वो सही होएगा। जरूरी नहीं है, ठीक है, कि 14 वाला ऑप्शन ही जरूरी हो, जिते तुहानूं लग रहा है कि होर कोई ऑप्शन ही नहीं गिवन, तुहानूं इत्थे ऑप्शनस भी किस तरीके नाल गिवन सीगियां 13 दी वालियां भी सीगियां 14 वालियां भी सीगियां, तो उत्थे थोड़ा जिहा संचेत हो जाओ, उत्थे तुहानूं थोड़ा जिहा सोल्वेशन करने की जरूरत पैनी है। अगर ऑप्शनस ही बहुत दूर दूर होनियां सी, जिवें कि आपां प्रीवियस क्वेश्चन किया सी, फिर तो कोई चक्कर ही नहीं है, फिर तुहाडा जो नियर अबाउट होएगा वही तुहाडा आंसर होएगा। क्लीयर है ये चीज़। नैक्सट चलिए 6th क्वेश्चन के उपर। 6th क्वेश्चन आपां देख लैंदे हां हुण। हाँ जी, तो 6th क्वेश्चन की है तुहाडे कोल 5/6 मल्टीप्लाई 6 3/7 मल्टीप्लाई सॉरी एडिशन 5 1/2। इसनूं खुद सॉल्व करो फिर आप देखांगे, ठीक है। हाँ जी, हुण इस दे विच की है, इस दे विच आपां ने एडिशन वाली टर्म नूं नहीं देखना, एडिशन वाली टर्म नूं इहदे नाल ज़्यादा पंगे नहीं लैने, पहले आपां मल्टीप्लाई वाली सॉल्व कर लैंदे हां, ठीक है। हुण देखो मल्टीप्लाई वाली ये टर्म है, देखो इसनूं देखो मेरे को किया 5/6 है, ठीक है। तो इसमें मैं की लिख सकती हाँ, मैं तुहानूं पहला भी इन्नी बार दस्सिया है कि जेकर तो एडिशन मल्टीप्लाई है फिर तो इन्हों सॉल्व ना करो। हुण मल्टीप्लाई है तो उन्होंने तुहानूं सॉल्व करना पैना है। अगर एडिशन सबट्रैक्शन हुंदा फिर इन्हों आपस दे विच सॉल्व करदे, ना कि मिक्स फ्रैक्शन नूं सॉल्व करदे, ठीक है। हुण आपां मिक्स फ्रैक्शन नूं देखदे हां, इन्हां दोनों की मल्टीप्लाई करांगे कितना आ जाएगा 30 आ जाएगा, ठीक है। 30 दे विच 5 उपर वाले 5 नूं की कर देवांगे ऐड कर देवांगे, तो मेरे को कितना बन जाएगा 35 बन जाएगा मल्टीप्लाई। इत्थे डिनोमीनेटर दे विच 7 है, 7 6 जा 45 सॉरी 42 दे विच 3 नूं ऐड करांगे 45,
प्लस इसनूं भी सॉल्व कर ही लैंदे आ, ठीक है, क्योंकि ये तो बिल्कुल सिंपल फॉर्म दे विच बन गया। डिनोमीनेटर दे विच 2 आएगा, 5 2 ज़ा 10, 10 और 1 कितना हो गया 11। सारियां नूं मैं सिंपल फ्रैक्शन दे विच की कर लिया, कन्वर्ट कर लिया। हुण अकॉर्डिंग टू बोर्ड मास मैं पहला एडिशन करा जां मल्टीप्लाई करा, कॉमन सेंस मल्टीप्लाई करांगे पहला, ठीक है, तो पहला मल्टीप्लाई करो। मल्टीप्लाई का मतलब की हो गया जिहड़ा कुछ कट हुंदा वो कट दो, ठीक है। 7 दे नाल मैंने यही कट हो रहा, ठीक है, किन्ने ते 5 ते कट दो, ठीक है जी। हुण अगर आप अगे गल करिए तो मेरे को की बच जाता है 5 × 45, मेरे को डिनोमीनेटर च बचता 6 और उपर इन्हां दोनों की मल्टीप्लाई 25 5 20 225 प्लस 11/2। हुण तुसीं कहोगे इत्थे आपां मल्टीप्लाई क्यों की, क्योंकि इत्थे होर कट नहीं होना सी, इत्थे उस तो बाद मैंने की करना सी ऐड करना सी, ना कि डिवाइड, ठीक है जी। तो इस तरीके नाल क्वेश्चन नूं देखना पैंदा है। उस तो बाद अगर आप गल करिए दोनों का डिनोमीनेटर का, अगर मैं एलसीएम लवांगी कितना आ जाएगा 6, इत्थे मेरे को कितना आ जाएगा 225 और 2 नूं जब मैं 6 नाल डिवाइड करांगी मेरे को 3 आ जाएगा और 3 नूं जब 11 नाल मल्टीप्लाई करांगे तो कितना आ जाएगा 33। सो मेरे को जो आएगा मेरे को आंसर वो की आएगा 852, ठीक है। हुण इसनूं डिवाइड कर दो, 6 दे टेबल ते डिवाइड करांगे तो कितना आ जाएगा, सब तो पहला 4 ते जाएगा, उस तो बाद 3 ते जाएगा। सो 43 इज माई राइट आंसर, ठीक है। तो कैलकुलेशन तो थानू करनी ही पैनी है, ठीक है। कैलकुलेशन तेज़ कर सकते हो प्रैक्टिस के नाल, ठीक है। नैक्सट अगर करिए क्वेश्चन 7th क्वेश्चन, 1 मिनट, हाँ जी, जो 7th क्वेश्चन है वह देख लेने आप। 7th क्वेश्चन मेरे को की है 48 - 12 × 3 + 9 डिवाइड बाय 12 - 19 डिवाइड 3। इस क्वेश्चन को आप किवें सॉल्व कर सकते हैं। हुण देखो उपर तुहाडे कोल अलग है सब कुछ, नीचे अलग है, तो पहला मैं की करांगी उपर वाला सॉल्व कर लांगे, नीचे भी अलग बोर्ड मास लगा लांगे, ठीक है। बोर्ड मास लिख लो, सब तो पहला ब्रैकेट है नहीं, उस तो बाद ऑफ है नहीं, उस तो बाद डिवाइड। हुण उपर मेरे को डिवाइड नहीं है, सो उपर तो डिवाइड सॉल्व नहीं होएगी। नीचे मेरे को डिवाइड है, ठीक है, नीचे मेरे को डिवाइड की है 19 डिवाइड 3, सो इनू भी नहीं मैं सॉल्व कर सकती। सो इसनू मैं लिख सकती हाँ 12 - 19/3 लिख सकती हाँ, इस तो इलावा इसनू सॉल्व ही नहीं कर सकते, ठीक है। हुण उपर अगर जाइए तो मल्टीप्लाई है, बिल्कुल है। डिवाइड तो बाद आप की सॉल्व करनी है, मल्टीप्लाई सॉल्व करनी है, तो मल्टीप्लाई मेरे को कितना दी है इन्हां दोनों की, और 12 3 का कितना हुंदा है 48 - 12 3 का कितना हुंदा है 36 + 9। ये चीज़ क्लीयर है। हुण देखो इसनू किवें सॉल्व करना है, उपरला वाला तो क्लीयर है ना, इन्हों अगर आप करांगे तो मेरे को आ जाएगा 12 + 9, नीचे आ जाएगा 12 - 19/3। सॉल्व कर लो बस, कुछ रहा ही नहीं ये, ठीक है। मेरे को कितना आ गया 21, 1 मिनट 21 और नीचे मेरे को कितना आ गया। मैं इदा करती हाँ, इन्हों के नीचे कुछ नहीं है, सो एलसीएम ले लैनी हाँ। एलसीएम लैके मेरे को कितना आ जाएगा /3, ठीक है। और जो एलसीएम लवांगे तो 1 नूं 3 नाल डिवाइड करांगे 3 ही आएगा, और 3 नूं जो 12 नाल डिवाइड मल्टीप्लाई करांगे तो कितना आ जाएगा 3 12 ज़ा 36 - 90, ठीक है। तो सॉल्व कर लांगे इसनूं, ठीक है। डिवाइड दी डिवाइड दे विच मैं तुहानूं पहला भी दस्सिया, डिवाइड दी डिवाइड दे विच उपर जाके की हो जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा। दिस वन इज़ गोइंग लाइक दिस, ठीक है। और नीचे मेरे को कितना आ जाएगा इन्हां दा माइनस कर देंगे, 6 दे विचों 9 16 दे विचों 9 माइनस करांगे तो मेरे को कितना आ जाएगा 7, ठीक है। और इत्थे मेरे को कितना आ जाएगा 1, ठीक है। तो मेरे को कितना बन रहा है इत्थे 63/17। तो सो मेरा राइट आंसर की होएगा 63/17। दिस इज़ माई राइट आंसर। क्लीयर क्लीयर, ठीक है। सो इस तरीके के क्वेश्चंस होंगे जो ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ डिनोमीनेटर ਦੇ ਵਿੱਚ अलग बोर्ड मास रूल ਨੂੰ सॉल्व करांगे और डिनोमीनेटर ਦੇ ਵਿੱਚ अलग, ठीक है जी। सो 8th क्वेश्चन आप देख लेने। 8th क्वेश्चन की है 20 + 8 × 0.5 डिवाइड बाय 20 - x इज़ इक्वल टू 12। ये मैंने की करनी है x की वैल्यू में फाइंड करना है, ठीक है। सो x की वैल्यू में फाइंड करना है, सो सिंपल ये नीचे कुछ नहीं है, सो मैं इस तरीके ना सॉल्व कर सकती हाँ, ठीक है। या फिर एक होर मैथड है, चलो पहले इदा ही कर लें, यही ज़्यादा सही बैठेगा क्योंकि मोस्टली स्टूडेंट ने यही यूज़ किया होंगे। सो जो 1 नूं आपां इहदे नाल मल्टीप्लाई करांगे तो कितना आ जाएगा 1 मिनट 1 नूं इहदे नाल मल्टीप्लाई करांगे तो कितना आ जाएगा 20 + 8 मल्टीप्लाई 20 + 8 मल्टीप्लाई 0.5, ठीक है। और इधर कितना आ जाएगा 12 20 - x। क्लीयर है ये चीज़, क्योंकि मैंने की किया इत्थे क्रॉस प्रोडक्ट करती, ठीक है। हुण अगे चलते हैं। हुण इधर इक्वालिटी दे विच देखो की बोर्ड मास रूल लगेगा, पहला मल्टीप्लाई होएगी इन्हां दोनों की, ठीक है। इन्हां दोनों की मल्टीप्लाई कर लेने। मैंने की किया पॉइंट हटा के 10 लगाता, कर सकते हैं ये, ठीक है।
क्योंकि पहले मैं जस्ट मल्टीप्लाई नूं सॉल्व कर रही हाँ, एडिशन मैंने बाद विच करना है। मैंने की किया, पॉइंट हटा के 10 लगाता, ठीक है। हुण जो मैं इसनूं सॉल्व कर रही हाँ, 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10 और 2 नूं मैं 8 के उपर कैंसल करता, 4 आ गया। तो मेरे को कितना बच गया 20 + 4, जो कितना बन गया मेरे को 24 इज़ इक्वल टू 12 20 माइनस x। क्लीयर है ये चीज़, ठीक है। हुण मैं तुहानूं दस्सिया सी अगर 12 इधर मल्टीप्लाई दा इधर आके किहदा हो जाएगा, डिवाइड दा हो जाएगा। हुण अगर मैं 24 नूं 12 नाल डिवाइड करांगी तो मेरे को कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा, ठीक है। 2 मेरे को आ गया कट करके, तो मेरे को कितना आ गया 2 माइनस 20 इज इक्वल टू माइनस x, ठीक है जी। और इत्थों मेरे को कितना बच गया माइनस 18 इज इक्वल टू माइनस x, और x की वैल्यू मेरे को कितनी आ गई 18 आ गई, विच इज़ माई राइट आंसर। क्लीयर है ये चीज़, x की वैल्यू मेरे को इत्थों कितनी आ गई 80। क्लीयर है ये। दोबारा देख लेने इस क्वेश्चन के आपां की कीता, कुछ भी नहीं किया, मैंने की किया क्रॉस प्रोडक्ट करती, क्योंकि ये मैंने x की वैल्यू भी फाइंड करनी सी। सो क्रॉस प्रोडक्ट करके मेरे को की बन गया इक्वालिटी के इक्वेशन बन गई। इक्वालिटी के इधर मेरे को कोई बोर्ड मास रूल नहीं अप्लाई हो रहा सी, ठीक है। इधर मैंने कोई जरूरत नहीं पई बोर्ड मास रूल अप्लाई करने की, क्योंकि इधर कुछ है ही नहीं सी, ठीक है। ओनली माइनस सीगा। इधर मेरे को 2 सिंबल सी, तो मैंने पता सी पहला मैंने की करनी है मल्टीप्लाई करनी है, क्योंकि मैंने पॉइंट गिवन सी, तो मैंने पॉइंट हटा के की लगाता 10, जो कुछ कैंसल होंदा सी करता, कैंसल होके मेरे को कितना आ गया 4, 20 नूं प्लस 4 किया तो मेरे को कितना बन गया जी 24। आफ्टर दैट सॉल्वेशन, जो कि बिल्कुल ईजी है, सिंपल है, ठीक है। चलिए आगे अगला जो क्वेश्चन है वो मैं तुम्हारे सामने लिख रही हूँ। अगला क्वेश्चन की है मेरे को 3 1/4, आफ्टर दैट 4 1/6 प्लस x प्लस 1/4 इज इक्वल टू 10, ठीक है। तो ये चीज़ देखते हैं आप इसनों आप किवें सॉल्व कर सकते हैं। तो बिल्कुल ये भी वही चीज़ करांगे। पहला जो x वाली टर्म्स ने, सॉरी जो पहला जिमें 3 हो गया 4 हो गया, इधर कुछ है ही नहीं, इन्होंने सॉल्व कर लेने। 3 + 4 मेरे को कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा, प्लस उस तो बाद मैंने की करना है 1/4 प्लस 1/6 प्लस 1/4 मैं इधर लिख सकती हाँ, ठीक है जी। और इक्वालिटी के मैं की करती हाँ 10 नूं उधर लैगी, x नूं उधर लैगी, सबट्रैक्ट का करता, ठीक है। उस तो बाद देखो हुण देखो 7 है, उधर चल जाएगा ये भी, ठीक है। उधर जाके किदा हो जाएगा माइनस का हो जाएगा, ठीक है। तो मेरे को कितना हुण देखो ये मैं एक स्टैप के 2 स्टैप करांगी, जिमें कि आप एग्जाम के करना है, ठीक है। हुण देखो पहली गल तो ये 1/4 तो 1/4 है, तो मैं इत्थे की कर सकती हाँ दोनों का एडिशन बड़ी ईजीली कर सकती हाँ, क्योंकि 1/4 प्लस 1/4 करांगे तो मेरे को कितना बन जाएगा 2/4 बन जाएगा, ठीक है। और 2/4 नूं जो मैं कैंसल करांगी तो मेरे को कितना आ जाएगा दोबारा 1/2 आ जाएगा, 1/2 प्लस। क्लीयर है ये चीज़। आफ्टर दैट हुण देखो मेरे को कितना है 1/2 प्लस 1/6, और ये वाला जो 7 सी इनू मैं उधर ले जाके सबट्रैक्ट करता 10 के विचों, ठीक है। तो मेरे को कितना आ जाएगा 3 माइनस x, ठीक है। इस तरीके नाल तुसीं पूरी जो कैलकुलेशन अपनी एग्जाम के विच किवें करनी है। आफ्टर दैट इन्होंने दोनों को करते हैं आप सॉल्व, इन्होंने दोनों को किवें सॉल्व करांगी, एलसीएम लैके मेरे को कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा, ठीक है। इनू इहदे नाल डिवाइड करांगे कितना आ जाएगा 3 नूं 1 नाल मल्टीप्लाई करांगे तो कितना आ जाएगा 3, और इधर कितना आ जाएगा 1, 3 माइनस x। कर दो इसनूं सॉल्व बस। इत्थे मेरे को कितना बन गया 4/6 बन गया, इधर मेरे को कितना बन गया 3 माइनस x बन गया, ठीक है। अगे अगर आप गल करिए 4/6 मैं कैंसल करके कितना लिख सकती हूँ 2/3 लिख सकती हूँ, ठीक है। मतलब मेरे को कितना बन गया 2/3, ये वाला 3 इधर आके कितना हो जाएगा माइनस का हो जाएगा, इक्वालिटी के मेरे को कितना रह गया -x। सॉल्व कर दो, नीचे कुछ नहीं है, तब मेरे को कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा, ठीक है जी। तो 3 2 -9 इज इक्वल टू -x, ठीक है। तो मेरे को कितना बच गया -7/3 इज इक्वल टू -x, मतलब x की जो वैल्यू है वो मेरे को कितनी आ गई 7/3, ठीक है 7/3। क्लीयर। तो ये मेरे को की होएगी वैल्यू होएगी किसकी, आंसर होएगा मेरा जो मैंने क्वेश्चन किया, ठीक है। क्लीयर है ये चीज़, ठीक है। नैक्सट क्वेश्चन करते हैं। नैक्सट क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 आप देख लें, ठीक है। हुण उस दे विच की है 3/8 प्लस 1/2 दा 3/16। हुण तुसीं इत्थे दा लिख लो जां ऑफ लिख लो, कोई फर्क नहीं पैंदा, सेम मीनिंग है, ठीक है। तो देखो इत्थे ऑफ वाले क्वेश्चंस भी सेम ही चीज़ होंदी है। ऑफ का मतलब की हुंदा मल्टीप्लाई हुंदा, मल्टीप्लाई करना ऑफ करना, मतलब देखो बोर्ड मास दे विच भी जो आप ओ हुंदा है ना ओहदा मतलब हुंदा ऑफ, ठीक है। हुण देखो इस चीज़ नूं तो सब तो पहला तो इत्थों जो क्लीयर है ये चीज़ कि एडिशन करन तो पहला मैं ऑफ वालियां जो 2 टर्म्स ने उन्हां नूं सॉल्व करांगी। तो मेरे को कितना आ जाएगा 3/8 प्लस 1/2 मल्टीप्लाई 3/16,
एग्जाम ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਇਹ ਸਟੈਪ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। नो ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਨੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ऑफ वाला करना है, तो ਉੱਥੇ ਹੀ ਸੋਲਵ ਕਰ ਦੋ। ਇਹਨਾਂ ਪੂਰਾ ਲਿਖਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਕੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਕੱਲਾ ਤੁਹਾਡਾ ਟਿਕ ਮਾਰ ਕੇ ਦੇਖਣਾ ਨਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਥੇ ਹੀ ਸੋਲਵ ਕਰ ਦੋ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਜਦੋਂ ਸੋਲਵ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਕੁਝ ਕੈਂਸਲ ਹੋ ਰਿਹਾ, 1 ਨਾਲ 16 ਨਹੀਂ ਕੈਂਸਲ ਹੋ ਰਿਹਾ, 2 ਨਾਲ 3 ਨਹੀਂ ਕੈਂਸਲ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨਾ ਆ ਜਾਏਗਾ 3/8 प्लस जो कुछ कैंसल ही नहीं हो रहा तो उपर वाली टर्म में उपर वाली टर्म नाल मल्टीप्लाई और नीचे वाली टर्म में नीचे वाली टर्म नाल मल्टीप्लाई, तो इत्थे कितना आ जाएगा 32। क्लीयर है ये चीज़, क्लीयर है जी। हुण अगे चलते हैं। हुण अगे देखो एक होर अगर आप गल करिए एल्शियम लवांगे इन्हां दा, एल्शियम जो लवांगे तो मेरे को एल्शियम लैके कितना आ जाएगा 32 आ जाएगा। 8 नूं 32 नाल डिवाइड करांगे कितना आ जाएगा 4 और 4 नूं 3 नाल मल्टीप्लाई करांगे तो कितना आ जाएगा 12। 32 नूं 32 नाल डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा 1 और 1 नूं 3 नाल मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा 3। तो इत्थे मेरे को कितना बन गया 15/32। 15/32 की हुण ये सॉल्व हुंदे ने। 15/32 नूं की मैं सॉल्व कर सकती हाँ, नहीं कर सकती, सो यही मेरा की होएगा राइट आंसर होएगा। सिंपल, क्लीयर। चलिए अगे। ठीक है जी, तो अगे अगर आप कर रही गल तो अगला जो क्वेश्चन होएगा वो किहड़ा क्वेश्चन होएगा 11th क्वेश्चन। हाँ जी, अगला जो क्वेश्चन है वो किहड़ा क्वेश्चन है 11th क्वेश्चन। वेट, 11th क्वेश्चन मैं तुहाडे सामने लिख रही हूँ। वो मेरे को की है 7 + 7 + 7 / 7 और इस दे बाय दे विच की है 7 + 7 + 7 / 7। इस क्वेश्चन नूं सॉल्व करो जी। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ, ਕੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹਨੂੰ ਤਾਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ 7 + 7 ਇਹ ਤਾਂ ਕੱਟ ਕੁੱਟ ਕੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ 1 ਆ ਜਾਏਗਾ, ਕਿੱਦਾਂ ਆਏਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਨੋਟ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਕਰਨੀ ਹੈ डिवाइड करनी है, बाद ਵਿੱਚ एडिशन करनी है, क्योंकि बोर्ड मास रूल के अकॉर्डिंग मैं पहला डिवाइड करांगी बाद ਵਿੱਚ एडिशन करांगी। बट डिनोमीनेटर ਦੇ ਵਿੱਚ मैंने एक ब्रैकेट देता और इस ब्रैकेट ने साफ साफ कहता कि पहला तो ऐड होएगा उस तो बाद डिवाइड होएगी। डिफरेंस क्लीयर हो रहा है। देखो इत्थे की है 7 + 7, 7 नूं 7 नाल डिवाइड कीते कितना आ गया 1। दैट्स इट, क्लीयर। हुण इत्थे की है पहला मैनू ऐड करना पेगा बिकॉज ऑफ ब्रैकेट, क्योंकि अगर एडिशन तो पहला डिवाइड होंदी है तो डिवाइड तो पहला आपां की करदे हैं ब्रैकेट सॉल्व करते हैं, चाहे ब्रैकेट दे विच कोई भी सिंबल होवे। सो मैनू पहला ब्रैकेट सॉल्व करना पेगा और ब्रैकेट दे विच तिन्नां दा एडिशन है। सो एडिशन मेरे को कितना आ जांदा है 21, उस तो बाद की है / 7। क्लीयर है ये चीज़। हुण इसनूं अगे सॉल्व कर लैंदे आ तो मेरे को कितना आ गया ऊपर 15 आ गया। ठीक है, इसनूं जदों मैं डिवाइड कर दांगी तो मेरे को कितना आ जाएगा 3 और आंसर मेरे को कितना आ जाएगा 5। सो ईजी क्वेश्चन देखने च ऐ लग रहा सी कि पता नहीं की होएगा। अगर तुहाडा कैलकुलेशन तुहानूं क्लीयर नहीं है कॉन्सैप्ट तो तुसीं इस क्वेश्चन नूं गलत करके आओगे। ठीक है, बट अगर तुहाडे कॉन्सैप्ट क्लीयर ने तो तुसीं बड़ी ईजीली 1 ਜਾਂ 2 मिनट दे विच ਜਾਂ 1 मिनट दे विच तुसीं इसनूं बड़ी आराम नाल क्वेश्चन नूं सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, करिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की है 6/1 मिनट। हाँ जी, 6/7/8। ठीक है, चलो 1 मिनट। इस तो पहला ये क्वेश्चन करते हैं, इस तो पहला आप ये वाला क्वेश्चन करते हैं। 5/8 दा 24 गुना, ठीक है, इज इक्वल टू 15/7 ऑफ x मल्टीप्लाई x। ठीक है, तो इसका मतलब की है, पहली गल तो इसका मतलब की हो गया। इसनूं जेकर आप सिंपली देखिए थोड़ा जा, इस चीज़ के कन्फ्यूज होने की जरूरत नहीं है कि ये सानू की दिता होया। अगर इसनूं आप इंग्लिश के विच लिखते हैं तो मेरे को की स्टेटमेंट बनती है 5/8 ऑफ 24 इज इक्वल टू 15/7 इंटू x। इसका मतलब यही है, सिंपल। हुण ऑफ नूं आपां किवें सॉल्व करांगे, ऑफ नूं मल्टीप्लाई लिख लो या ना लिखो, है ना। 8 नूं अगर मैं सॉल्व कर रही हाँ 24 दे नाल कितना आ जाएगा 3, तो मेरे को इत्थे कितना बन जाएगा 5 3 = 15 और इज इक्वल टू मेरे को कितना 15/7 इंटू x। 15 नाल 15 इत्थे भी कैंसल कर सकते हो, या फिर तुसीं अगर इत्थे कैंसल नहीं करना तो भी सेम ही मीनिंग है। ठीक है, आप इसनूं किद्दां लिख सकते हैं 15, क्योंकि जो मैं इक्वालिटी तो इधर लेके आवांगी 15/7 तो मेरे को की बन जाएगा 17/15 बन जाएगा और इक्वल टू दे विच की रह जाएगा x। मतलब सेम ही है। मतलब जेकर आप जल्दी कैलकुलेशन करना चाहते हैं तो आप इदा ही कैंसल भी कर सकते हैं। इतों मेरे को x की वैल्यू कितनी आ जाती है 7, विच इज़ माई आंसर। ठीक है जी, आगे चलते हैं। अगला जो क्वेश्चन है 999 1 मिनट। हाँ जी, 999 1/7 प्लस 999 2/7, इसी तरीके नाल 999 6/7। ये जो होएगा ये कितना होएगा,
ठीक है। हुण इसनूं आपां सॉल्व करते हैं। हुण मैं तुहानूं क्या सी कि यह जो होएगी मतलब सिंपल शब्दों में अगर आपां कहीए कि जो मेरे को एडिशन के उस जो ये वाली टर्म्स ने इन्हों मैं अलग तो ऐड कर लाँगी। ठीक है। हुण ये टर्म्स मेरे को कितनी बारी ने 6 बार ने 1 2 उस तरीके 3 4 5 6 बारी होणगियां। सो मैं इन्होंने 6 टाइम्स लिख सकती हाँ कि 6 टाइम्स 999 ईजिली लिख सकती हाँ। और पिछे मेरे को बच जाएगा 1/7 प्लस 2/7 प्लस 3/7 अप टू सो ऑन 6/7 तक मेरे को यह नंबर ने जो बच जाएंगे। क्लीयर है ये चीज़। ठीक है। हुण इन्हां दी आपस दे विच मल्टीप्लाई कर देंगे 6 दी 999 नाल, तो मेरे को कितना आ जाएगा 9 6 का कितना हुंदा 54। ठीक है। 54 और 5 कितना हो गया 9, फिर मेरे को 5 आ जाएगा। ठीक है। 54 और मेरे को कितना आ जाएगा 59। ठीक है। ये मेरे को होएगा। ठीक है। यदि जो मैंने मल्टीप्लाई की आपस के तो ये मेरे को ये आंसर आ गया। प्लस हुण इत्थे 7 है, सारिਆਂ ਦਾ डिनोमीनेटर 7 है, तो मैंने कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, ऐड कर दो। ऐड मैंने की करना है 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 तक मैंने ऐड करना है। तो 1 2 3 4 5 6 ऐड कर दो। 3 3 6 और 4 कितने होंगे 10, 10 और 11 कितने होंगे 21। सो इत्थे मेरे को कितना आ जाएगा 21 आ जाएगा। हुण देखो जो 21 आ गया तो ये तो कैंसल हो गया ना आपस दे 3 हो गया। इस जो मैं 3 ऐड करांगी तो मेरे को कितना आ जाएगा 5997 और यही मेरा की होएगा राइट आंसर होएगा। ठीक है। हुण देखो ये क्वेश्चन देखने च किवें दा लग रहा है, इसके ना डरावना लग रहा है, कोई होगा या नहीं। कितना सिंपल जा क्वेश्चन है ये कि अगर मेरे को मिक्स फ्रैक्शन दे विच इस तरीके ना एडिशन च जिन्नियां मर्जी टर्म्स होन, ठीक है, इन्होंने मैं 6 बारी ऐड करदा या फिर उसनूं मैं 6 नाल मल्टीप्लाई करदा, आएगी तो सेम ही चीज़। अगर आप गल करिए जो बाकी दे नंबर सी उन्हां सारियां दा डिनोमीनेटर सेम सी और सारियां दा डिनोमीनेटर सेम होने करके जस्ट डिनोमीनेटर दा की करना है ऐड करना है और उन्होंने की किया सॉल्व किया। क्लीयर है ये चीज़। सो यह सीगा अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। अगे गल करिए क्वेश्चन नंबर याद नहीं रहा मेरे किनमें। ठीक है। चलो देखते हैं अगला जो क्वेश्चन है वो की होएगा। एक होर क्वेश्चन कुछ इसी तरीके का देख लैने उसनों की होएगा वो, जिमें कि मेरे को क्वेश्चन है 999। ठीक है। वेट, हाँ जी 999। उस तो बाद मेरे को की है 995/999। इसनों मैंने मल्टीप्लाई करनी है 999 दे विच। हुण तुसीं सोचोगे कि ये तो एडिशन ही नहीं है, किस तरीके नाल इसनूं सॉल्व करांगे, सानूं एड्डी लंबी मल्टीप्लाई करनी पैनी है कि 999 999 मल्टीप्लाई करांगे, साडा सारा टाइम इस क्वेश्चन दे विच ही लंघ जाना है। ठीक है। एवें तो कुछ नहीं है। एक चीज़ तो आपां नूं क्लीयर है कि जो भी होवे, ठीक है, कुछ भी आवे इन्हां दी मल्टीप्लाई करके जो डिनोमीनेटर है इस टर्म का वो तो यही रहेगा ना, और मल्टीप्लाई दे विच भी यही टर्म रहेगी। ऊपर की आएगा उस वैल्यू का नहीं हले आपां नूं पता। क्यों नहीं पता? क्योंकि वह आएगी इन्हां दोनों की मल्टीप्लाई करन तो बाद ऊपर वाला नंबर ऐड करके। सो एक चीज़ तो मैंने इत्थे क्लीयर है कि ऊपर कुछ भी आवे ये वाले ने तो कैंसल हो ही जाना आपस दे विच। ठीक है। ये वाली दोनों टर्म्स अगर आप देखिए तो कैंसल हो ही रही ने ना आपस दे विच। सो सारा खेल किधर रह गया? सारा खेल रह गया कि वेट कि 995 ऐड करना है इन्हां दोनों की मल्टीप्लाई दे विच। इन्हां दोनों की मल्टीप्लाई दे विच। ठीक है। यही रह गया सारा कुछ। ठीक है। क्योंकि देखो ध्यान नाल सोचो, अगर नहीं वैसे तो बेसिक जी चीज़ है कि इस नंबर ने तो इस नंबर नाल कैंसल हो ही जाना है, क्योंकि ये दोनों आपस के ने डिवाइड दे विच ने तो कैंसल हो ही जाएंगे। ठीक है। हुण अपने मेन पॉइंट इत्थे आ जाता है कि फिर भी आपां नूं इन्नी लंबी चौड़ी मल्टीप्लाई करनी पैनी है, नहीं करनी पैनी। मल्टीप्लाई करन दा भी एक की हुंदा मैथड हुंदा जिहदे नाल आपां नूं इन्ना ज़्यादा नहीं करना पेगा। हुण देखो 999 नूं मैं की लिख सकदी हाँ 1000 - 1 लिख सकदी हाँ, और इस 999 नूं मैं की लिख सकदी हाँ 1000 - 1 लिख सकदी हाँ। जेकर सिंपल शब्दों में कहां तो मैं इसदा स्केयर लिख सकदी हाँ। ठीक है। स्केयर हुण तुहानूं याद होवे मैंने थानूं कल फॉर्मूलेस करवाए सी। ठीक है। कि a - b का जो स्केयर हुंदा है वो की हुंदा है a स्केयर प्लस b स्केयर माइनस 2ab। यही चीज़ दस्सिया सी मैं तुहानूं फॉर्मूलाज लिखवाए सी, कुछ आइडेंटिटीज़ लिखवाइयां सी। ठीक है। वो क्यों लिखवाइयां सी? इस तरीके नाल आपां उन्हां नूं एज अ शॉर्ट ट्रिक आपां इन्हां नूं यूज़ करते हैं। और इस तो इलावा सिंपलीफिकेशन दे विच भी कुछ इदां दे क्वेश्चनस बन जाते हैं। नैक्सट क्वेश्चन आपां इहदे नाल ही डिस्कस करांगे। ठीक है। हुण इसनूं मैं की लिख सकदी हाँ 1000 - 1 लिख सकदी हाँ। 2 बार लिखण की जगह मैंने इसका स्केयर लिख लिया। सेम थिंग हुण मैनूं पता है, मैं तुहाडे सामने हुणी लिखिया सी कि मेरे को फॉर्मूला की हुंदा है a स्केयर प्लस b स्केयर माइनस 2ab। ठीक है। ये चीज़ होएगी। ठीक है। हुण देखो 1000 का स्केयर करांगे तो मेरे को कितना आएगा
मेरे को आ जाएगा 1 2 3 4 5 6 जीरोज़ आ जाएगियाँ। उस दे विच मैं 1 नूं ऐड कर रही हाँ, मैं इत्थे ही 1 नूं ऐड कर देनी है, तो मेरे को कितना आ जाएगा 1, तो मतलब 5 जीरोज़ और उस तो बाद 1 माइनस उस दे विच मैंने की करना है 2 ਨੂੰ 1000 ਨਾਲ मल्टीप्लाई करांगी तो 2000 आ जाएगा, जिन्होंने मैं 1 ਨਾਲ मल्टीप्लाई करांगी तो वापस वही चीज़ आ जाऊगी। हुण तुसीं देखो कि इस कैलकुलेशन ਨੂੰ सॉल्व करना ज़्यादा ईजी है ਜਾਂ इस कैलकुलेशन ਨੂੰ सॉल्व करना ज़्यादा ईजी है। हुण तुसीं कहोगे कि ये तो बहुत लेंथी है, लेंथी बिल्कुल नहीं है। तुसीं 4-5 क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे तो तुहाडी स्पीड बन जानी है, तुहाडी प्रैक्टिस हो जानी है, तुसीं बड़ी जल्दी जल्दी करोगे। क्योंकि अगर ध्यान नाल देखा जाए तो इस कैलकुलेशन में 2 ਨੂੰ 1000 ਨਾਲ मल्टीप्लाई करने की ही जरूरत नहीं है, बट तुसीं उहदे विच किते ना किते तुहाडी गलती जो है वो होने के चांसिस भी बहुत होंगे ने, क्योंकि ये जो बहुत लेंथी चली जाती है। समझ रहे हो इस चीज़ को? ठीक है, तो इदा किवें आपां करांगे, इदा अपनी स्पीड किवें बनेगी, प्रैक्टिस करके। क्लीयर? तो चलो हुण इन्हां दोनां दा सबट्रैक्ट कर दो, उहदे नाल अपना की आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। इस दे विच इसनूं वेट, हाँ जी, इस दे विच इसनूं माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। ठीक है, अगर गल करिए इसनूं इस दे विचों माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा 1, उस तो बाद 0 ਨੂੰ 0 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ माइनस करांगे 0, 0 ਨੂੰ 0 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ माइनस करांगे 0, और 0 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 2 माइनस नहीं हो सकता, दैट्स मीन 10 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 2 माइनस करांगे तो 8 आ जाएगा। आफ्टर दैट इत्थे की बन जाएगा 9, और 9 और A1 की हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। ठीक है, हुण बहुत सारे बच्चे सोचेंगे जी आंसर आ गया, नहीं आया। तुसीं भुल गए एक चीज़, की चीज़ भुल गए कि अपना एडिशन दे विच एक होर चीज़ पई है, वो की पई है 995। सो इत्थे अपने कोल की होएगा, ऐड होएगा, की ऐड होएगा 995। सिंपल ऐड कर दो, ऐड करना कोई ईजी नहीं है ये। ठीक है, ये अपना की आ गया, आंसर आ गया। दिस इज़ अवर राइट आंसर। क्लीयर है ये चीज़? ठीक है, वैसे अगर तुहानूं ऑप्शंस गिवन होणगे फिर तो सानूं ऐड करने की भी जरूरत नहीं पैनी, फिर तुसीं कल्ले लास्ट डिजिट नूं ऐड कर लियो, तुहाडे कोल की आ जाएगा लास्ट डिजिट 6 आ जाएगा, और ऑप्शनस दे विच मैच कर लियो कि 6 केड़ा आंसर है, मतलब 6 किस दे आंसर दा कौन से ऑप्शन का लास्ट यूनिट है। ठीक है, यूनिट प्लेस है। ठीक है, क्लीयर? चलिए अगे, तो अगे बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है उसनूं डिस्कस करते हैं। अगला क्वेश्चन तुहाडे सामने है, बिल्कुल नैक्सट जो क्वेश्चन है उसमें देख लेने। अगला क्वेश्चन तुहाडे सामने किहड़ा है, जिवें मैं तुहानूं दस्सिया सी कि जो फॉर्मूलाज ने उसनूं आपां किस तरीके नाल, कुछ इदां दे भी क्वेश्चनस बन जाते हैं कि A + B द होल स्क्वायर अपॉन A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर। ठीक है, हुण इसनूं आपां किवें सॉल्व करांगे, देखो इसनूं थोड़ा मैं छोटा करके लिख ला, A + B द होल स्क्वायर अपॉन A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर। हुण देखो एक चीज़ तो मैं तुहानूं कही सी, बहुत सारे स्टूडेंट ये की करनगे, उपर वाला फॉर्मूला खोल लैणगे। ठीक है, उपर वाला मीन टू से A + B दी होल स्क्वायर दा फॉर्मूला नहीं। अगर आपां नूं दोबारा दस रही हाँ, अगर अपना कॉन्सैप्ट क्लीयर है, अपना बेस क्लीयर है, तो आपां नूं ये भी पता हो लग जाता है कि क्वेश्चन नूं सॉल्व किस तरीके नाल करना है। आपां उपर वाले नाल कोई पंगा नहीं लैना, उपर वाले नूं इदां ही रखना है। A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर का मतलब द फॉर्मूला की हुंदा है, A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर इक्वल टू हुंदा है A + B और इंटू A माइनस B। सो इत्थे अपने को एक चीज़ क्लीयर है कि आपां जो इत्थे लिखांगे इस फॉर्मूले नूं खोल के की लिख सकते हैं, A + B और A माइनस B। ठीक है, हुण तुसीं कहोगे कि यह क्यों लिखिया, क्योंकि देखो डिवाइड दे विच ने, डिवाइड दे विच की है, ये चीज़ ये एक नाल कैंसल हो रही है, मेरे को 2 ने बट एक कैंसल हो रहा है, एक कैंसल हो रहा है, तो मतलब मेरे को ऊपर की बच जाएगा, एक A + B बच जाएगा, 2 सी एक कैंसल करता, नीचे मेरे को की बच जाएगा A माइनस B बच जाएगा, और यह मेरे को की है राइट आंसर है। एवें दे क्वेश्चनस भी बनते हैं, और एवें दे क्वेश्चन प्रॉपरली फुली फॉर्मूले के उपर बेस्ड होंगे हैं, और ये जो क्वेश्चनस होंगे इंपोर्टेंट होंगे हैं। इसलिए मैं तुहानूं जो कल आइडेंटिटीज़ लिखियां सी नोट कर लो, रट्टा मार लो, जिमें भी करके वो आइडेंटिटीज़ तुहाडे माइंड दे विच बैठियां होनियां चाहिए। 20 तक जो स्क्वेयर्स ने, 10 तक जो क्यूब्स ने, ठीक है, ये तुहाडे माइंड दे विच होने चाहिए हैं। ठीक है, ज़्यादा तो ज़्यादा क्वेश्चनस करो। ठीक है, बोर्ड मास रूल है जो ये तुहाडे रट्टे होया होना चाहिए। सो ये सारियां चीज़ां तुहाडे माइंड दे विच ऑल द टाइम सैट होनियां चाहिए ने। ठीक है, क्लीयर? एक वैसे तो टाइम हो गया, चलो एक अद्धा क्वेश्चन होर आप डिस्कस करते हैं, देखते हैं फिर उसनूं। ठीक है, देखो एक मैं तुहानूं इदां दा भी क्वेश्चन बन जाते हैं कि 1 3/16 अते इस दे उल्ट दा अंतर दसो। इंग्लिश दे विच अगर आप कहिए दैन फाइंड द डिफरेंस बिटवीन दिस नंबर एंड इट्स रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल या फिर कह लो उल्ट कह लो, उस दे विच आपां ने की करना है, डिफरेंस फाइंड करना है। हुण देखो स्टेटमेंट की सी 113/16 कहंदे इहदा ते इस दे उल्ट दा डिफरेंस दसो, अंतर कड्डो।
उल्ट का मतलब की हो गया, मैनू इनू सॉल्व करना पैना है। इनू उल्टा करने लिए पहले इनू मैनू सिंपल जो फॉर्म है उसके लैके आना पैना है। 16 एज इट इज़ आ जाएगा, 16 नू 1 नाल मल्टीप्लाई करांगे तो कितना आ जाएगा 16, 16 दे विच 3 नू ऐड करोगे तो कितना बन जाएगा 19, ठीक है। हुण मैं इसनू उल्टा कर सकती हाँ, अगर मैं क्लीयरली देखा तो इसनू उल्टा करके मेरे को कितना आ जाएगा 16/19, कहते इन्हां दा माइनस करो, और ये माइनस तुसी खुद करोगे और कमेंट सैक्शन दे विच जां ग्रुप दे विच मैनू आंसरस भी दसोगे, क्योंकि हुण मैं तुहानू कुछ क्वेश्चन दे रही हाँ, वो क्वेश्चन तुसी खुद सॉल्व करोगे और मैनू वो तुहाडी जो सॉल्वेशन है वो चाहिदी है विद आंसरस, ठीक है। क्योंकि अगर तुसी खुद प्रैक्टिस करोगे तो ही तुहाडा जो क्वेश्चन ने वो सॉल्व होणगे। और मैं तुहानू ग्रुप दे विच भी जो क्वेश्चन भेजे सी और मैनू उम्मीद है वो क्वेश्चन तुसी सॉल्व भी कर ले होणगे, ठीक है। अगर नहीं किए तो उन्होंने भी कंप्लीटली डिस्कस करो, ठीक है। तो इन्हां दा जो सबट्रैक्ट है तुसी खुद सॉल्व करोगे, ठीक है। इस अलावा जो क्वेश्चंस ने जिमें कि फॉर एग्जांपल तुसी क्वेश्चन लिख सकते हो 1 डिवाइड 1 प्लस 1 1 प्लस सॉरी 1 डिवाइड 1 प्लस 1 डिवाइड 2, ठीक है। सो इस दे ब्रैकेट वगैरह सारा कुछ देख लो, ये क्वेश्चन तुसी खुद सॉल्व करोगे, ठीक है। आफ्टर दैट अगर गल करिए स्क्रीनशॉट लै लियो जां उतार लियो, ठीक है। इस तो बाद तुसी जो क्वेश्चन सॉल्व करोगे वो किहड़ा क्वेश्चन होएगा, वो होएगा 171 डिवाइड 19। ये तो बिल्कुल सिंपल जो क्वेश्चन मैं दस रही हूँ तुहानू, ठीक है। ये तो बिल्कुल बेसिक जो क्वेश्चन है, ठीक है। उस तो बाद अगर गल करिए, क्लीयर हो गया, ठीक है। एक क्वेश्चन ये भी है, इदा के भी क्वेश्चन जो है एग्जाम के बनते हैं, एक बार इसनू खुद ट्राई करो, अगर नहीं होया तो कल की वीडियो के आप की करांगे नैक्सट टॉपिक डिस्कस करने तो पहला इन्होंने क्वेश्चनस नू डिस्कस करांगे। अगर तुहाडे क्वेश्चन नहीं होंगे, ठीक है, या फिर तुहाडा कोई भी डाउट है तो प्लीज़ मैनू दस जरूर दियो, ठीक है। नहीं फिर आप नैक्सट टॉपिक की अपना स्क्वेयर और क्यूब रूट, ठीक है, उन्होंने स्टार्ट करांगे, ठीक है। क्लीयर है ये क्वेश्चन, ठीक है। इदा का एक होर क्वेश्चन तुसी नोट कर लो, ठीक है, वह भी तुसी करना है। वो की होएगा 2 इज़ इक्वल टू x प्लस 1/1 प्लस 1/3 प्लस 1/4। हम तुम कहोगे इदा के क्वेश्चन तो सूँ कराई नहीं, ट्राई करके देखो, बड़े ईजी ने। इदा आप अगर नहीं किए तो चलो एक क्वेश्चन वाला क्वेश्चन आप डिस्कस कर लें, ठीक है। वाला क्वेश्चन आप डिस्कस कर लें, इनू किस तरीके नाल तुहानू आइडिया जो मिल जाएगा थोड़ा जा, ठीक है। हुण देखो ये की है, मैंने की करना है, देखो 5 है ना उपर, उन्होंने एज इट इज़ रहन दो। सब तो पहला सब तो नीचे वाली टर्म्स नू लो, ठीक है। सब तो पहला सब तो नीचे वाली टर्म नू लो, ठीक है। नीचे वाली टर्म की है 1 - 2/3। की फर्क पैंदा है, 1 दे माइनस करना है, डिनोमीनेटर वही है जो रहेगा, इन्होंने दोनों का की कर दो माइनस, क्योंकि इत्थे की है माइनस, तो मेरे को कितना आ गया 1/3। मतलब मेरे को की बन गई स्टेटमेंट, मेरे को स्टेटमेंट बन गई इत्थे मेरे को 2/3, 1 - 2/3 की जगह मेरे को कितना आ गया 1/3। क्लीयर है। हुण क्योंकि ये डिवाइड दी डिवाइड दे विच है, यह डिवाइड दी डिवाइड दे विच है, सो ये उपर जाके की हो जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। तो मेरे को कितना बन जाएगा, मेरे को बन जाएगा 5/3 माइनस मेरे को उपर जाके जो मल्टीप्लाई होएगा तो 3 × 3 मेरे को कितना बन जाएगा 9 बन जाएगा। 3 × 3 मेरे को कितना बन जाएगा 9। हुण मैनू ये दसो ये कुछ ना सॉल्व होने जोगा है, ठीक है। तो मेरे को कितना बन गया 5/-6 बन गया, दैट्स इट। क्लीयर, क्लीयर है, ठीक है। तो यह थोड़े की हो जाएगा आंसर हो जाएगा, हाँ जी। वेट मैंने स्टेटमेंट दे विच माइनस, हाँ जी, ठीक है, बिल्कुल क्लीयर। नैगेटिव है तुसी नीचे लिखो उपर लिखो, कोई फर्क नहीं पैंदा, तुहाडा की आ जाएगा आंसर आ जाएगा, ठीक है। इस तरीके नाल जो ए वाला क्वेश्चन है इन भी तुसी सॉल्व करना है खुद, ठीक है। इहदे नाल की करनी है एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है, कोई भी डाउट होगा तुसी दस सकते हो मैनू, ठीक है। तो चलो अज नहीं करते हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस हो गए, सिंपलीफिकेशन की हर एक टाइप मैं तुहाडे नाल डिस्कस कर ली, ठीक है। कल आप नवा टॉपिक शुरू करांगे स्क्वायर रूट क्यूब रूट, ठीक है। उम्मीद है तुहानू सिंपलीफिकेशन नंबर सिस्टम शॉर्ट ट्रिक्स जो भी आप हुण तक किया समझ आया होना। अगर समझ आ रहा है पसंद आ रही ने वीडियोज़ तो पहली गल तो तुहाडा काम की होएगा, तुहानू सबनों पता है कि वीडियो नू लाइक करना, ठीक है। उस तो बाद वीडियो नू शेयर करना, ठीक है। और उस तो बाद जेकर तुसी नवे हो चैनल के उपर तो सबसक्राइब करना, ठीक है। तो जरूर अपनी कमेंट्स के विच अपने जो रिव्यूज़ ने वो भी दिया करो, ताकि सानू पता लगता रहे तुहाडी जो तैयारी हो किस तरीके नाल चल रही है, ठीक है जी। तो चलो फिर मिलते हैं नैक्सट वीडियो के विच नवे टॉपिक नूं लैके। तो क्लीयर, चलो फिर थैंक यू।